राहुल आपको बहुत बहुत मुबारक, बल्कि आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक। जो मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगती है, छू जाती है एंड में। और सलमान, मुझे मुझे सलमान खान साहब की याद आती है तेरे नाम। इट वाज इंटेंशनली डन। Well, no, not really. क्योंकि जब when I got creatively involved, I knew for a fact कि क्या होता है कि आज की हमारी जो ऑडियंस है ना, पहले 10 सेकंड में देख के बोल देती है कि आगे का वीडियो देखना है कि नहीं. And when they start continuing, there's always an expectancy कि एंड में कुछ अलग आए. जब वो अलग की बात आई तो ये स्टोरी जो है ना, इट्स वेरी इम्पैक्टफुल. लोगों को ये दिखाने का हमेशा से ही इरादा ये था कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा पा लेना. प्यार का मतलब ये होता है कि अगर आप जिसको प्यार करते हो उसको कहीं और खुश देखते हो, टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन इन लव, दैट सैक्रिफाइस इज एवरीथिंग. प्यार में तो वो उस तरह से ना ये स्टोरी बिल्डअप हुई. बट इट्स अ वेरी गुड थॉट कि आपने इसको ना तेरे नाम के साथ रिलेट किया. क्योंकि आई थिंक दैट्स द ओनली बॉलीवुड फिल्म दैट वाज मेड जिसके अंदर पागलपन, जिसके अंदर एक मेंटल असाइलम, एंड दैट वाज व्हाट अ बेंचमार्क ऑफ अ फिल्म यार. बट नहीं, इंटेंशनली इट वाजंट डन. इट इंटेंशनली इट वाजंट डन ना. Casting plays a very important part. I think, what was your reaction the moment they asked you to be on board for this project with Alba? I'm very fond of Saurabh's work, our director. And when he played the song, I first fell in love with the song. I was like, oh my God, ye kiski awaaz hai? It's so intense and so amazing. And secondly, when he told me the dance forms that he will be using, the type of art he will portray, तब मैंने बोला कि ये तो मुझे करना ही है, because this is like, you can say, kind of part of my forte, because I used to be a figure skater, जिसमें बहुत सारे ये modern dance, ballet classes, क्या बोलते हैं, लगता था, to build your form, your posture and everything. So this is something I've been waiting for actually, to get to show in Bollywood, but पहले से किसी ने वो ऑफ़र नहीं किया है. तो अभी सौरभ ने ये फाइनली मुझे ऑफ़र किया है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. And that's why I've gone like all out in this, being very strict with myself also to make sure कि सारे steps मतलब अच्छे देखेंगे, बराबर देखेंगे. And yeah, so I'm extremely grateful. Like, this is something like my parents also are so proud of, and my mother was so happy when she saw the teaser that she immediately sent it to my figure skating trainer. And she was also very proud seeing me performing like this in Bollywood, showcasing this side of me. As you said, you haven't done anything, something like this before. It is an intentional effort to break your body of work which you have already done. So I didn't get you. As you said, you have never done something like this. If this is an intentional effort to break the body of work which you have already done, or exploring yourself. Oh, well, no. मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो एक्चुअली मेरे अंदर है, because I was a figure skater. So the art is very much similar, and I would say more than the kind of work that I have been doing in Bollywood. This is more closer to my my soul and my heart, because this is very close to figure skating, which was like the biggest crush in my life. So what I mean to say कि मेरे लिए like these kind of a posters and all is much more natural and closer to my heart than the tak. So yeah. आवाज़ सुनते ही कानों में रस घुलता है. इसलिए नहीं बोल रहा मैं आपके रूबरू बैठा हूँ. वाकई में अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. कैसी जर्नी रही और क्या इतना मुश्किल और आसान रहा? हम बोलते थे कि हमने गाना कर लिया या आर्टिस्ट ऑन बोर्ड आ गए, लेकिन एक पूरा सफ़र होता है उसके पीछे, किसी प्रोजेक्ट के पीछे. थ्रू सम लाइट. नहीं, ऑफ कोर्स आसान बिल्कुल नहीं होता है, ये तो मैं सबसे पहले बता दूं. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट.
बोथ वेज, आप ऑडियो देखें वीडियो देखें। पहले तो ऑडियो में बहुत मेहनत रहती है जो मैं पीछे करता हूँ, जो कई बार बयां नहीं हो पाती है, क्योंकि बट ऑडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है। उसके बाद जो वीडियो का फैक्टर आता है, और हम इस स्केल पे अगर एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं, सो बहुत सारी इसमें डिफ़िकल्टीज़ रहती है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। बट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आई है, मतलब लाइक ड्यूरिंग द शूट काफ़ी सारी चीज़ें थी। इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट शूट। ये एक नॉर्मल लव वीडियो, सैड वीडियो की तरह नहीं था। इसमें डांस है, स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो येस, आई थिंक इतना आसान सफ़र नहीं होता है एक गाने को बनाना, बट आई एम हैप्पी फाइनली वीडियो आज आ गया है एंड वी सक्सेसफुली डिड इट एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। जब एली और सलमान जैसे शख्स का हिस्सा बन जाते हैं, कितनी ज़िंदगी आसान हो जाती है? ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं अपने काम को लेके और बाकी चीज़ों को भी लेके। सो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई यहाँ पे। अगर पहले तो कोई दूसरा थॉट था ही नहीं कि कोई और एक्टर आएगा। सौरभ, हु सीम्स टू बी लाइक माई ब्रदर एंड अ वेरी गुड डायरेक्टर, उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि भाई ये दो लोग रहेंगे तो हम ये वीडियो करते, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। बट आई रियली वांटेड टू डू इट, क्योंकि मैंने जब आइडिया समझा था, इस तरह का डांस फॉर्म देखा था। सो आई थिंक लाइफ बहुत आसान हो गई है नाउ। एली इज़ सो बिग, पीपल लव हर। सलमान भाई को लोग इतना प्यार करते हैं, इतना देखा है दोनों को लोगों ने। सो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है ऑफ कोर्स। The most challenging part while performing the choreographic sequence है। आप दोनों से पूछना चाहूँगा, हालांकि आप दोनों बहुत महारत हासिल रखते हो, और एली ने तो कहा कि उनकी तो आत्मा से एंजॉय किया, लेकिन फिर भी वो तो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट while working on it। या पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपका पर्सपेक्टिव जो आपने वो, मैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर मैं अटक गया आपने जब वो क्वेश्चन पूछा, बिकॉज मैंने वो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं कि आप उसको तेरे नाम से रिलेट कर जाओगे। फिर अभी बैठ के तब से मैं सोच रहा था उसका क्लाइमैक्स क्या था, तब मुझे याद आया वो अपने क्लाइमैक्स में जैसे उनको होश आता है वो भागते हैं ताकि शादी ना हो जाए, और फिर वहाँ पे उनके पार्टनर को मरा पड़ा देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ पर उसको खुश देखकर आई सैक्रिफाइस इट, सेइंग कि लेट हर बी, लेट मी नॉट डिस्टर्ब हर लाइफ। तो ना इट्स एन अमेजिंग टेक। ये ऑडियंस का पर्सपेक्टिव मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा रहेगा, बट अमेजिंग, गुड। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट कोरियोग्राफी, यस, कोरियोग्राफी हम लोगों का जो प्रोसेस है इट वाज वेरी नेचुरल। हमने बैठ के पहले डिस्कशन किया कि इस सॉन्ग को सुनकर आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू फील। तो उस इमोशन को जब हमने पकड़ा रिहर्सल हॉल में, जब हम गए, वी नेचुरली लेट आवर बॉडीज फ्लो। हमने कहा कि लेट्स सी हाउ द बॉडी रिएक्ट्स, जब कोरियोग्राफी प्रोसेस थी, और उस हिसाब से जो प्लस माइनस करना था, जो येस नो होना था, वो पूरा प्रोसेस हुआ। और फिर वो चीज़ मैकेनिकल ना लगे, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ही रिहर्सल किया हुआ है और आके ना परफॉर्म करें, नहीं, इट ऑल्सो नीड्स टू लुक नेचुरल। उस पर बहुत काम हुआ है। आई हर्ड आप ये थोड़ी देर पहले प्रभु सर से बात कर रहे जी, थे, वो इतना वक्त मुझे नहीं लगता किसी को देते होंगे फोन पे भी। बट थैंकफुली ही डज गिव इट टू मी फॉर ऑल माई वर्क। वी हैव अ गुड 20 मिनट्स का डिस्कशन, और बहुत ही, मैं उनको बताऊँ सब लाइक अ प्योर क्रिटिक, प्लीज़ टेल मी, बिकॉज हर एक चीज़ आपसे सुनना फॉर मी इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, एंड फॉर हिम हिज बॉडी ऑफ वर्क, द डायरेक्टर ही इज़, द कोरियोग्राफर ही इज़, इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई हैव समबडी लाइक हिम टू कॉल मी अप आगे से एंड स्पीक टू मी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या बोला, तो उनको म्यूज़िक क्या, उनको पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, उसके अंदर उनको सर्टन मूव्स बहुत अच्छे लगे जिस हिसाब से एडिट किए गए थे, एंड ही लव्ड द स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग वाज अ प्लस, एंड उनको लगा कि यार बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने, एक पॉइंट उन्होंने ऐसा बोला कि उनको लगा हमने बहुत ज़्यादा डांस कर दिया, बट वी एज अ टीम फेल्ट कि नहीं यार, फॉर द पिकअप जो गाने का जो रॉक वर्जन है उसके लिए शायद वो नेसेसरी था, बट आई टेक हिज पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड आई लव द फैक्ट दैट ही कॉल्ड मी अप। I would like to say, this what you were asking. Now I remembered. During the rehearsals, so this contemporary dance form that we were doing, where we are like falling down on the floor. So I have this thing like, that's the only thing for my body, जो मेरा body मतलब अच्छा नहीं लगता है, where it's very much like I resist. And I think it has to do because of my figure skating days again, because we are always up here, and then it's always about landing and not falling on the ice, So falling on the ice happened few times, and that's like, the body
remembers it as a trauma, you know, आप गिर जाते हो, मतलब दर्द होता है. So that I remember Salman was like, no, Ellie, you need to like love the floor, like fall easily. So I literally went down on the floor and I was like, I was kissing it and I'm like, I love you, floor, I love you so much. And just, I want to get dirty here with all, because I'm very much like dust, 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 you know, like this. So I was like, no, 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 I love you, love you, love you. And that's when then slowly I started to embrace the floor work. So yeah, and then on the day of shoot, वो फ्लोर इतना ये वाओ मतलब क्या बोलते हैं वो स्मूथ नहीं था बट तब ये याद करना था कि नो आई लव द फ्लोर एंड वो भी पानी के ऊपर भी और हमको मतलब ऐसा स्लाइड भी नहीं होना चाहिए था सो इट वाज वेरी टफ बट विद गॉड्स ग्रेस वी मैनेज्ड टू डू इट या जो भी आप कर रही हैं बहुत खबर चाहे वो आमिर खान के साथ थोड़ा सा भी थोड़ी सी क्लिप आ रही है लोगों ने इतना वायरल हो गया इतना अप्रिशिएट करा जाने लगा जी और एक्सपीरियंस वर्किंग विद आमिर और इट्स ऑल अबाउट Oh, it's been wonderful. I feel really blessed that I've got this experience. मतलब जो भी मैंने सुना उनके बारे में when I entered the industry, like everything is so true. He's just such an amazing person, so professional, so into everything. There's so much to learn from him. So that has been a great experience, and I'm super excited for you guys to see that song also. ओके गाइस पीछे बड़े लोग मेरे क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार राहुल क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को और जो संघर्ष के बाद आप यहाँ तक की जर्नी रही है आप तीनों से क्योंकि कोई अपने आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रिलीज करना किसी गाने को भी बहुत बड़ी बात है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए मुझे ऐसा लगता है ना लोग अमूमन बड़े म्यूजिक लेवल के पीछे भागते हैं या कंपनी आप कर रहे हैं हैट्स ऑफ टू यू क्या मैसेज देना चाहेंगे इस एल्बम के माध्यम से क्या खास हालांकि मुझे तो बहुत कुछ खास नजर आ रहा है क्यों इसका हिस्सा बने लोग पसंद भी कर रहे हैं अभी आप देखिए व्यूज भी बहुत ज़्यादा आ गए आप तीनों से वेल इफ़ आई हैव टू बिगिन आई वुड से कि यार अगर आप आपके टैलेंट में अगर आप आपके प्रोडक्ट में भरोसा रखते हो तो डोंट वरी आज की डेट में आई थिंक लॉकडाउन इज़ ऑल्सो हेल्प्ड अस इन क्वाइट अ बिट क्योंकि आज OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो कोई बड़े प्रोड्यूसर पे कोई बड़े डायरेक्टर पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है आपको विश्वास है कि वो ऑडियंस तक पहुँचेगा उनके दिल को छुएगा कम आउट एंड गिव इट एंड द ऑडियंस विल सी इट और आज की ऑडियंस हमारी बहुत स्मार्ट है आज जैसे कि ऋतिक सर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा वही बनेगा जो हकदार होगा तो दिस इज़ द ज़माना वी आर इन सो थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस एंड वी हैव डन आवर बेस्ट नाउ इट्स अप टू यू Yeah, completely. Well, for me, to be honest, of course, you know, we put our entire soul into our work. So, of course, you wanted to reach out because for me, I want to inspire people. I want people to watch this video and say, "Yaar, ye mujhe bhi seekhna hai. I also want to dance like this and perform like this." And for me, everything I do it for myself actually, for my own satisfaction, so that I can feel proud of myself when I will be 80-year-old auntie. I will feel proud मतलब ये सारे चीज़ों को देख के कि you know ये मैंने किया है अपने life में, you know. So and I think that is why I'm very hard on myself also कि अगर मैं एक step नहीं कर पा रही हूँ ना, I'm very much like नहीं मुझे करना है because it's for my own satisfaction. I want to feel proud of myself, you know. उसके बाद if my family also are proud and my close friends, that also of course warms my heart a lot. But that is my main thing, you know. And then to inspire others, yeah. वेरी लाइटर नोट मुझे लग रहा है आमिर खान की कंपनी का ज़्यादा असर हो रहा है क्या कंपनी में आमिर खान ने अच्छा ऐसा है या शायद मैं ऐसी इंसान भी हूँ शायद मैंने इनके लिए काम भी किया है इसकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी बातें सलमान एंड एली ने बोली दी है बट टू सम अप विथ यू नो बहुत सारा हार्डवर्क किया है एंड आई रियली वांट टू यू नो रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस दैट प्लीज़ सपोर्ट ओरिजिनल म्यूज़िक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एंड सो दैट यू नो आई कैन डू मोर सच स्टफ्स अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो
और इस गाने पे बहुत मेहनत करी है मैंने, इन्होंने ऑल्सो टू मेंशन सौरभ हु इज़ द डायरेक्टर, अमित लखानी हु इज़ द लिरिसिस्ट, एंड ऑल्सो टू ऑल द पीपल जो बिहाइंड द कैमराज रहते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं. सो आप लोग अगर अप्रिशिएट करेंगे तो हम ऐसे ही बहुत सारा काम शायद कर पाएंगे आगे भी. सो प्लीज़ गिव ऑल योर लव टू फिदाई. इट्स ऑलरेडी आउट ऑन माई चैनल विच इज़ राहुल जैन. थैंक यू सो मच